Hello students, in previous lecture we had completed the exercise 1.1. Now we will proceed further. So very first topic is statement pattern. You all know how to draw truth table. In the starting of the chapter, while doing the examples on the logical connectives and all, we had seen how to draw the truth table. So the very first topic is now today statement pattern. Now what is statement pattern? Statement pattern is a combination of statement letters and the logical connectives. So it is proper combination of statement letter and logical connectives is called statement pattern. So what is a statement pattern? Statement pattern is combination of statement letter and the logical connectives. Example, P implies Q. These are statement letters and this is connective. So it is a statement pattern. If I write P and Q or negation R, so this is also a statement pattern. P, Q, R are statement letter and these are the logical connectives. So very simple, what is a statement pattern? Statement pattern is a combination of statement letter and the logical connectives. Now we will proceed for the next topic, logical equivalence. Two statements pattern are said to be logically equivalent if their truth table are identical. It is very clear. टू स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंट बोल सकते हैं इफ देयर ट्रुथ टेबल्स आर आइडेंटिकल. ओके, सो टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रुथ टेबल्स आर आइडेंटिकल. सो वी विल राइट इट एज ए आइडेंटिकल टू बी, स्टेटमेंट पैटर्न ए आइडेंटिकल टू स्टेटमेंट पैटर्न बी. हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो ए बी की जगह पे कोई स्टेटमेंट पैटर्न रहेगा. Now we will see there are three types of statement pattern. Statement pattern हमारे पास तीन टाइप के हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा टाइप है. सो टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिंजेंसी. फर्स्ट वन इज टॉटोलॉजी. नाउ व्हाट इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी. Tautology, very simple, statement pattern whose truth value is true for all possible combination, whose truth value is t for all possible combination. ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न जिसकी ट्रूथ वैल्यू टी रहती है किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉटोलॉजी. कॉन्ट्राडिक्शन, हुज ट्रूथ वैल्यू इज एफ फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन. ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न जिसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहती है किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन. नाउ व्हाट इज कंटिंजेंसी? अ स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नाइदर टॉटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन. जो ना तो टॉटोलॉजी रहता है यानी कि सब ट्रू भी नहीं हो सकता, ना तो कॉन्ट्राडिक्शन रहता है यानी कि सब फॉल्स भी नहीं हो सकता. इसका मतलब उसमें ट्रू फॉल्स मिक्स होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंसी. तो व्हाट इज कॉन्टिंजेंसी? ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न विच इज़ नाइदर टॉटोलॉजी
nor contradiction. That means all the entries are neither true and all the entries are neither false. Mix रहेगा, TF mix रहेगा, तो उसे हम कहते हैं contingency. So now we will proceed further. Now in a statement pattern, different symbols are considered in the following priority. सो प्रायोरिटी हमको कैसे देना है, पहले हम नेगेशन को कंसिडर करते हैं, फिर और एंड को कंसिडर करेंगे, एंड लास्ट में इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन. मीन्स क्या, इसका मीनिंग क्या है कि अगर एक स्टेटमेंट पैटर्न में ये सब यूज़ हो रहा है तो हमको पहले क्या सॉल्व करना है, पहले किसको लेना है, तो पहले हम नेगेशन लेते हैं, फिर और एंड लेते हैं, एंड देन इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन. जैसे हम लोग अलजेब्रा कैसे हम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल अलजेब्रा कैसे करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर रहता है तो हम पहला प्रेफरेंस देते हैं प्लस माइनस को, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सिमिलरली हियर इन द लॉजिक, फर्स्ट वी विल प्रिफर नेगेशन, देन डिसजंक्शन कंजंक्शन, देन इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन. ठीक है. So if in a statement pattern these are the symbols there, if in a statement patterns these symbols are there, we will give the priority them in this way. Okay. So now we will start the exercise 1.2 based on this topic. So exercise 1.2 question number 1, construct the truth table for the following statement pattern. क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट पैटर्न है और हमें उसके लिए क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है. ठीक है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स. ठीक है. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज P implies Q and Q implies P. Okay. So आंसर इसका सॉल्यूशन आएगा वेरी सिंपल. Given statement pattern, this is the given statement pattern and we want truth table for it. Okay, so P, Q. So first we will write the combination of P, Q. So it will be T, F, sorry, T, 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 F, F, T, F, F. Either P is true and Q is also true. P true, Q false, P false, Q true, or both are false. इसको हम लोग इजी वे में कैसे दे सकते हैं, टी टी लिखने का, फिर एफ एफ, देन टी एफ टी एफ. ओके, 2 times T, 2 times F, 1 time T, 1 time F, T F. Now we will see this. First we have to solve the small bracket. है ना, हम लोग जैसे अगर मैथ्स भी सॉल्व करते हैं तो पहले जो ऐसे ब्रैकेट में होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट यू हैव टू डू P implies Q. ओके, ब्रैकेट वाइज हम देख रहे हैं P implies Q. सो हमको पता है T implies F क्या आता है, F, अदरवाइज T, है ना. कंडीशनल का ट्रूथ टेबल हम देख चुके हैं. T implies F, F आता है अदरवाइज T. P implies Q and Q. दैट मीन्स ये जो हमको P implies Q मिला है इसका कंजंक्शन करने का है किसके साथ, Q के साथ. कंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. टी 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 टी
T, बाकी सब false. Last, P implies Q and Q जो हमको मिला है इसका हमको implication करना है P के साथ. Okay, so that means what? This implies P. So T implies T, T होता है. F implies T भी T होता है. T implies F, F होता है. F implies F भी T होता है. ठीक है, इसका implies P. So T implies T, T. F implies T भी T. सिर्फ T implies F, F होता है. F implies F is T. So by this way हम लोग ने ये स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल बना दिए. ठीक है, सो ये गिवन स्टेटमेंट पैटर्न था और उसका हमने क्या बनाया, ट्रूथ टेबल. सो आई होप दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू ऑल, क्योंकि हम लोग ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ट्रूथ टेबल बनाना सीखे. बस ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न वगैरह आ गया, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल. नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट. P and negation Q double implies P implies Q. Okay, given statement pattern. Given statement pattern क्या है? P and negation Q double implies P implies Q. इसका हम लोग को ट्रूथ टेबल बनाना है. This is very easy. We have two statements P, Q. Okay, T, T, F, F, T, F, T, F. इसमें से हमको किसी का नेगेशन चाहिए. हाँ, Q का नेगेशन चाहिए, तो जिसका नेगेशन चाहिए वो हम पहले निकाल लेते हैं. T का नेगेशन F, F का T, अगेन T का F, F का T. नाउ सी, जैसे हम लोग मैथमेटिकल अलजेब्रा करते हैं कि ये दो ब्रैकेट है, फिर ये दो ब्रैकेट है, फिर उन दोनों के बीच में कोई प्रोसेस है. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस टू ब्रैकेट, देन दिस टू ब्रैकेट, एंड इन बिटवीन देम डबल इम्प्लीकेशन. सो सी, P and negation Q. And means conjunction. Conjunction means if both are true then true. So P and negation Q, if both are true, तो यहाँ पे दोनों true कहीं पे भी नहीं है. T, F, F आ जाएगा, है ना. बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, देन ट्रू. ओके, P एंड नेगेशन Q दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. फिर आता है P इम्प्लाइज Q, ये वाला ब्रैकेट. सो P इम्प्लाइज Q, ओनली T इम्प्लाइज F, F, T इम्प्लाइज T, T, F इम्प्लाइज T भी T, F इम्प्लाइज F, T. ओके, now in between them you have to do the double implication. So P and negation Q, इसका हमको डबल इम्प्लीकेशन करना है P implies Q के साथ. डबल इम्प्लीकेशन हम जानते हैं कैसा होता है. if both are same then true, if different then false. so यहाँ पे दोनों different है तो false, different है false, डिफरेंट फॉल्स, यहाँ भी डिफरेंट है फॉल्स. ठीक है, ठीक है. डबल इम्प्लीकेशन के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है अगर सेम रहेगा तो ट्रू, यानी कि T डबल इम्प्लाइज T, T आता है, F डबल इम्प्लाइज F भी T आता है, और डिफरेंट रहेगा तो फॉल्स. सो इस तरह से हम लोग ने क्या किए, स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल ड्रॉ किए. ठीक है. सो नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन in where there are three statement. Okay, P, Q and R. Okay, now see. One more question we will do. P implies negation of Q and R. Okay, P implies negation of Q and R.
So here there are three statement P, Q, R. So it is very simple. Now see here. Given statement pattern is P implies negation of Q and R. इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे. ट्रूथ टेबल. ओके, इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे. P, Q, R. This is very simple. If there are three statements, what you have to do? T, 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 4 times T. F, 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 4 times F. P, Q, R लिखने का 4 times T, 4 times F. Next will be 2 times T, 2 times F. 2 times T, 2 times F. Then 1 time T, F, T, F, T, F, T, F. इस तरीके से हम लोग all possible combinations लिख सकते हैं. So इस तरीके से हम लोग ने all possible combinations लिख दिए. जैसे हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड वगैरह में किया था, probability चैप्टर, इवन 11th में भी था. इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस तो हम लोग एच 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 कॉम्बिनेशन लिखते थे, फिर एच एच टी, है ना. सो वो कॉम्बिनेशन की भी एक ट्रिक्स थी ना कि ऐसे एच 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 हम लोग 4 टाइम्स करते थे और 4 टाइम्स टी 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 करते थे, फिर एच एच टी टी, एच एच टी टी एंड लास्ट एच टी एच टी एच टी एच टी, है ना. 10th और 11th में था इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस, तो ये कॉम्बिनेशन हम लोग वैसे ही बनाते थे. तो सिमिलरली यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है और लॉजिकल स्टेटमेंट्स है और हमें इसका ट्रूथ वैल्यू का कॉम्बिनेशन बनाना है. तो वो क्या रहेगा, अगर हम लोग वैसे सोच सोच के लिखते हैं, सो इफ़ ऑल आर ट्रू, फर्स्ट 2 आर ट्रू, लास्ट 1 इज़ फॉल्स, फर्स्ट इज़ ट्रू, सेकेंड इज़ फॉल्स, लास्ट 1 इज़ ट्रू. सो ऐसे हम लोग को सोच के लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा. दिस इज़ द ट्रिक्स यू कैन डू. 4 टाइम्स टी, 4 टाइम्स एफ, टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ टी एफ. ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. फर्स्ट यू हैव टू डू दिस राउंड ब्रैकेट. जैसे हम लोग मैथमेटिक्स, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स सॉल्व करते सेम वैसे. Q एंड R, Q एंड R. ओके, सो Q और R के बीच में कंजंक्शन, अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स. करेक्ट. बोथ आर ट्रू, then true, otherwise false. नेक्स्ट इसका क्या आएगा, नेगेशन. नेगेशन ऑफ Q एंड R, यानी कि Q एंड R जो हम लोग ने फाइंड किया उसका नेगेशन. नेगेशन ऑफ T, F, T, 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 F, T, T, T. Now P implies negation of Q and R. P implies this, P implies this, T implies F, F, T implies T, T, T implies T, T, T implies T, T, F implies F, T, F implies T, T, F implies T, T, F implies T, T. Only T implies F is F, all are, rest all are true for conditional. सो दिस इज़ हाउ हम लोग ने 3 स्टेटमेंट्स जिसमें दिए हुए हैं P, Q, R, उसका भी हमने ट्रूथ टेबल बनाए. सो इट इज़ वेरी इजी. नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. P implies Q implies R, double implies P and Q implies R. Very simple. P implies Q implies R, double implies P and Q implies R. So first bracket
डबल इम्प्लीकेशन, सेकेंड ब्रैकेट, तो हम लोग पहले ये दोनों ब्रैकेट्स निकालेंगे, फिर उन दोनों के बीच में डबल इम्प्लीकेशन करेंगे. सो वेरी इजी सॉल्यूशन. गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज P implies Q implies R, double implication. P and Q implies R. इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे. सेम 3 स्टेटमेंट्स है तो हमारा ट्रूथ टेबल ऐसे ही पैटर्न में बनेगा. वन 2 3 4 5 6 7 8. P Q R. ठीक है. नाउ सी T T T T F F F F. हम लोग पहले सारे कॉम्बिनेशंस लिख रहे हैं. T T F F T T F F. लास्ट वन T F T F T F T F. Correct? So we will go one by one. First we will do for this bracket. So in this bracket there is one small round bracket also. So first you have to do this. पहले देख लो किसी का negation नहीं है तो negation नहीं निकालना है. Q implies R. Q implies R. Implication में हम देख चुके हैं. Only T implies F is F. All are true. So only T implies F. F आएगा. T implies F. F. T implies T. T. F implies T is also T. F implies F. T. T implies T. T. T implies F is F. And rest all are true. Next is क्या करना है हम लोग को. P implies Q implies R. करेक्ट. तो ये पूरा फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा. P implies Q implies R. P implies this. T implies T. T. T implies F. F. T implies T. T. T implies T. T. F implies T. T. F implies F. T. F implies T. T. F implies T. T. Only T implies F is F. Rest all are true. So ये हम लोग ने फर्स्ट ब्रैकेट कर लिया ये वाला. अब इस पे जाते हैं. P and Q. And if both are true then true, otherwise false. T T T. ये भी T. False. 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 क्योंकि दोनों ट्रू सिर्फ यही जगह है तो इसलिए T. P and Q implies R. This implies R. Okay. T implies T. T. T implies F. F. F implies T. T. F implies F. T. F implies T. T. F implies F. T. F implies T. T. F implies F. T. ओके. ऐसे यहाँ पे हाथ रख के हम लोग चेक कर सकते हैं. T implies T. T होता है. T implies F. F होता है. F implies T. T. और बाकी सारे कॉम्बिनेशन ट्रू आने वाले हैं क्योंकि सिर्फ T implies F ही F होता है. रेस्ट ऑल आर ट्रू. अब हमको क्या करना है. इसके और इसके साथ में लगाना है डबल इम्प्लीकेशन. डबल इम्प्लीकेशन में क्या रहता है. सेम रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. सो ये आएगा P implies Q implies R. फर्स्ट ब्रैकेट डबल इम्प्लीकेशन P and Q implies R. Okay. वेट. ओके. सो हमको डबल इम्प्लीकेशन करना है. दिस डबल इम्प्लीकेशन दिस. हम चाहें तो इसको नंबर्स दे सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8. सो 8 में हम लोग क्या कर रहे हैं. 5 डबल इम्प्लाइज
7, कॉलम 5 और कॉलम 7 को क्या करना है, डबल इम्प्लाइज। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट पैटर्न आता है तो हम लोग इस तरह नंबरिंग कर सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये लिखने के बजाय P implies Q implies R, डबल implies P and Q implies R लिखने के बजाय what we can write, column 5 double implies column 7. What is column 5? This double implies column 7. So अगर हमारा स्टेटमेंट पैटर्न बहुत बड़ा है, हमको लिखने नहीं हो रहा है एक पेज में, तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसकी जगह पे मैं लिखूँगी 5 डबल implies 7. ओके, ना सी इसके और इसके बीच में डबल इम्प्लीकेशन है, डबल इम्प्लीकेशन में सेम रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये दोनों सेम है, ट्रू, सेम है दोनों, ट्रू है ना, एफ एफ सेम है, ये टी टी भी सेम है, ट्रू ट्रू, आई होप सबके सब सेम है यहाँ पे, ट्रू 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 है ना, आई थिंक सब सेम है, देखो टी टी। सो दिस इज़ हाउ हम लोग ने ये क्वेश्चन का ट्रूथ टेबल प्रिपेयर किए। ओके, ये स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल। अगर स्टेटमेंट पैटर्न बहुत लंबा है, ऐसे इसमें लिखने नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको नंबरिंग करके इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 डबल इम्प्लाइज 7, 5 डबल इम्प्लाइज 7, ये ऐसे इधर भी लिख सकते हैं अगर ये लिखने नहीं हो रहा है तो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न. So today we will stop here. In the next lecture we will see the how to prove the two statement pattern equivalent and the tautology, contradiction and contingency. So now today we will stop here. The rest question of this exercise we will do in the next lecture.